Good evening, sir. Very good evening. Where are others? Isha is saying something. We'll wait for 5 to 10 minutes for others to join, then we'll start. Okay, let's do that. Even one student is also waiting. Someone has a name called Vivo V2126. Could you say your name?
Sure. So let's start. Isha, why don't you start it? Sure, sir. Okay. Hello, everyone. A very good evening to all in the present in the meeting. So, you all are new interns in Tarumitra, and today is our first official meeting for our new interns. So, Yeah. So yeah, welcome everyone to the team. And I am Darshan. I am a volunteer coordinator at Taramitra, and I would be your mentor. And Isha is she has been doing her internship. Why don't you talk about yourself, Isha? sure, sir. My name is Isha Mohan, as you can see, and I am intern at Tarumitra. I have almost completed my internship, and yeah, so I'm a student of Patna Women's College, and that's all for my my introduction. And So can we have a small round of introduction for all of us? I would be needing few things like your name, course you are studying in your college, name of your college, and a kind of skill set you may have that we could use in this internship. And one more rule for this introduction would be, so once you go ahead with your introduction, you introduce yourself, you need to appoint the next person who would be introducing after you. Okay. So Isha, you can appoint someone and then we can continue thereafter. okay, I would be like Neha Singh. Am I audible? Yes, you are audible. Okay, so go ahead with your introduction. My name is Neha Kumari Singh, and I am from Patna Women's College, second year, Economics. Nice. And a skill set, something, some kind of skill you may have. Skills about dancing. Right now, only this. Okay, cool. Can appoint the next person then. Neha, you need to appoint the next person after you. Okay, so Harpreet Kaur. Hello everyone, my name is Harpreet. I'm from BCom. I'm doing BCom honors and I'm studying from Patna Women's College. My skills are like teamwork and I can lead a group also. So thank you. Nice. Harpreet, you need to appoint the next person. Okay, so yeah. Kaveri Sharma. I think she got disconnected. So you can appoint someone else. Oh, Palak. Palak, are you available? Hello everyone. So myself Palak and currently I'm pursuing BCom from Patna Women's College and I would like to add my skills of art and craft and creating something good for Parumitra. Thank you so much. Palak, you need to appoint someone. Come on, guys. Do we like have to Name remind everyone? Prabha Sharma. Prabha. Good evening everyone. My name is Prabha and I'm doing my BCom from Patna Women's College. I can do my skills. I guess my skill are art and craft only. Nice.
Prabha, before muting yourself, you could say someone's name. Oh, sorry. I guess Chetna Shri. Hello everyone, I am Chetna from Patna Women's College pursuing my graduation in political science. I think I am interested in teaching. Nice. Okay. You need to appoint someone else too? Deyash. Hello everyone, my name is Desh. I'm from Patna Women's College pursuing BCom honors second year. I am good at leading the team, group work. Pass on to Tushita. Thank you so much. Good morning, everyone. My name is Tushita Deep, and I am pursuing BCom honors from Patna Women's College. I'm in second year, and I like doing creative stuff and work in team, and I can also play guitar. Thank you. Wow. Nice. Pursuing it to Ritika. We have Ritika here. Yeah, Ritika is here. So Ritika, you just came in. So we are just doing a small round of introduction for all of us. You need to say your name, your college name, course you are studying, and a skill set that you may have that would be very much useful in this internship. Ritika, am I audible to you? Ritika got disconnected. So we have Amarjeet Narayan here. So Amarjeet, can we have your introduction? Yeah, sure. My name is Amarjeet Narayan, and I am pursuing BBA from International School of Management. And I have skills of leading the team. Nice. So here I can see a lot of people from Patna Women's College are studying BCom. So how many of your friends? So anyone can unmute and just say the name of their friends who are available in the meeting right now. Palak says we all are actually friends. Oh, nice. So all of you are from the same, I mean, in same semester? Okay, cool. It's very compact team. So, but we need to talk, right? Anyways, let's not talk, take it so that way today. It's a very first day. The reason I have called this meeting today is to just have a small round of introduction at least. And one thing that I want you people to do before we start our internship next month from 2nd of April. Okay. So Isha, Yeah, sir. Okay, I'll be telling that.
Okay, guys. So we are working. Will Hindi is comfortable now? Okay, I'll Yeah, talk in Hindi. तो वी आर वर्किंग, हम लोग एक असाइनमेंट पे काम कर रहे हैं जिसमें हम लोगों को जो हमारे आसपास जो कबाड़ी वाले होते हैं दैट जो कार्टन्स वगैरह जो लेकर के जाते हैं, फिर स्टील्स वगैरह जो लेकर के जाते हैं, उनसे हम लोग कांटेक्ट करने का कोशिश कर रहे हैं. लाइक वी आर हैविंग अ कोलैब विथ रिसाइकलिंग बाजार. वो लोग क्या करेंगे कि वो लोग जो कबाड़ी वाले भैया रहते हैं उनसे वो लोग मिल करके दे विल क्रिएट अ सॉर्ट ऑफ फॉर्मलाइज दिस सेक्टर. इसको वो लोग फॉर्मलाइज करेंगे, उनसे डायरेक्टली कांटेक्ट करके एंड दे विल हेल्प द कबाड़ी वाला. सो बेसिकली हमारा क्या रोल है इस पूरे असाइनमेंट में कि हम लोगों को जितने भी कबाड़ी वाले हैं उनसे हम लोगों को एज मोर एज वी कैन उनसे हम लोगों को एक गूगल शीट फिल करना है, उनसे इंटरव्यू लेना है, कुछ चीजें उनसे पूछनी है जैसे नाम, उनका नंबर, उनके फैमिली में कितने लोग हैं, उनका कोई इंश्योरेंस पॉलिसी है या नहीं है, एंड वो कहाँ पे रहते हैं, कितना वो लोग उठा मतलब पूरे एक दिन में कितना वो लोग गाड़ी ये कलेक्ट कर लेते हैं कार्टन वगैरह. सो दिस इज द बेसिकली. बाकी सर इफ आई मिस्ड आउट समथिंग. Yeah, nice. You said almost exactly what we are doing. However, I would like to give a small elaborated, information on this, why we are doing it and what exactly is all about. तो हमारे घर से बहुत सारे वेस्ट निकलता है एवरी डे, राइट? यस, हम सब के घर से हर रोज वेस्ट निकलता है. कुछ चीजें होती हैं हमारे घर में जिसको हम लोग डस्टबिन में नहीं फेंकते, जैसे न्यूज़पेपर, पुरानी किताबें, सम मेटल आइटम्स. पुराना अगर कोई किचन का नल खराब हो गया है तो उसको हम नहीं फेंकते हैं बिकॉज दैट कुड बी सोल्ड इजीली और उससे हमें कुछ पैसे मिलते हैं. ऐसा होता है क्या आप लोगों के साथ? आप लोगों के घर में कभी आपने ऐसा देखा है? Yes, sir. एवरीडे Yes, न्यूज sir. तो उसको हम लोग डस्टबिन में नहीं डालते हैं, वी कीप इट. और दिवाली के पहले जब घर की साफ सफाई हो रही होती है तो वो सारा जो भी वेस्ट होता है जो हमें नहीं चाहिए वो हम क्या करते हैं, वो कबाड़ी वाला जो आते हैं भैया, वो जब ठेला लेकर आते हैं तो हम लोग देखते रहते हैं या फिर उनकी जब आवाज सुनते हैं तो उनको बुलाते हैं अपने घर पे और उनको दे देते हैं सब कुछ, है ना? और बदले में वो हमें पैसे देते हैं. So this is one sector which is working for recycling in India. And let me tell you very much one thing, a fact, कि ये लोग जो हैं इनके कारण से इंडिया में रिसाइकलिंग सेक्टर काम कर रहा है. There is no other like बहुत बाकी कोई ऐसा नहीं है सिस्टम जिसमें रिसाइकलिंग हो रहा है, लेकिन ये जो सेक्टर है, ये लोग जो हैं जो हमारे घर से हर रोज कचरा उठा के ले जाते हैं, ये सबसे बड़ा लोग इनका रहता है इम्पोर्टेंस है. फिर वेटेज इनके कारण से ही रिसाइकलिंग इंडिया में हो रहा है. या फिर आप लोग देखते होंगे रैक पिकर्स को, छोटे छोटे 10 साल 12 साल 15 साल के लड़के लड़कियां या फिर कुछ लोग औरतें भी रहती हैं, कुछ लोग भी रहते हैं जो बड़ा सा बोरा लेकर के अपनी पीठ पे ऐसे टांग के चलते रहते हैं और सड़क के किनारे कुछ बॉटल्स मिल जाए, टेट्रा पैक्स मिल जाए, कुछ मेटल का टुकड़ा मिल जाए, उसको उठा के अपने बोरे में डालते हैं, फिर उसको ले जाकर के वो कबाड़ी वाले को बेचते हैं, राइट? बट ऑल दिस सेक्टर इज इनफॉर्मल. गवर्नमेंट लाखों करोड़ रुपए खर्च कर रही है हर साल वेस्ट को मैनेज करने के लिए. स्वच्छ भारत मिशन एक हमारा इतना बड़ा कैंपेन चल रहा है पिछले आई थिंक 7-8 इयर्स से, राइट? और बहुत सारे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस हैं, पंचायत है गांव में जो कि जिनको फंड्स मिलते हैं लेकिन रिसाइकलिंग नहीं हो पा रही है. वो सारा चीज कहाँ जा रहा है? डंप साइट में जा रहा है. तो खैर वो हमारा भी मतलब नहीं है, लेकिन हमारा सबसे ज्यादा मतलब होना चाहिए कि ये जो रिसाइकलिंग जो हो रही है इसको कैसे और ज्यादा एम्पावर कर सके हम लोग. एज अ पार्ट ऑफ दिस इंटर्नशिप, दिस विल बी वन ऑफ योर सेगमेंट जहाँ पे हम लोग काम करेंगे. और भी बहुत सारे सेगमेंट्स होंगे जिसके बारे में हम लोग 2 अप्रैल के बाद हम लोग डिस्कस करेंगे.
but this is maybe a part wherein we can work before like internship, pre-internship work होगा आपका ये, जिसमें कैसे इन लोगों की हम मदद कर सकते हैं। तो एक ऑर्गेनाइजेशन है, कंपनी है रिसाइकलिंग बाजार करके। तो वो लोग अभी क्या करते हैं कि वो लोग कमर्शियल एरिया से वेस्ट कलेक्ट करते हैं, जैसे स्कूल्स हो गए, गवर्नमेंट ऑफिसेज हो गए, या फिर और भी अलग अलग जगह है जहाँ पे बल्क वेस्ट निकलता है। तो वो जैसे कि पुराने कंप्यूटर्स हैं, पुराने लैपटॉप्स हैं जो यूज नहीं हो रहे हैं, तो वो सारा कुछ लेकर रिसाइकलिंग में बेचते हैं। So they are interested into like getting into and connecting with this, recycling कबाड़ी वाला people. उनके साथ मिल करके ये लोग चाह रहे हैं कि इनकी लाइफ को भी बेटर की जाए और ये जो वेस्ट कलेक्ट कर रहे हैं इनका प्राइस भी उनको बेटर मिल पाए। तो इसमें ये लोग, इनके पास प्रोविजंस हैं कि जिनके जैसे हमारे और आपके पास लाइफ इंश्योरेंस हो सकता है, हेल्थ इंश्योरेंस हो सकता है, लेकिन ये कबाड़ी वालों के पास आपको लगता है कि उनका हेल्थ इंश्योरेंस या फिर लाइफ इंश्योरेंस होगा? No, sir. नहीं होगा ना। तो ये लोग जो रिसाइकलिंग बाजार है इनसे कनेक्ट करेंगे, इनको अपने नेटवर्क में लेकर आएंगे और इनका इंश्योरेंस कराने की बात कर रहे हैं और इनको एक बेटर प्राइस पे इनके प्रोडक्ट, इनके जो कचरे जो कलेक्ट करके लाते हैं वो बिक पाए, ऐसा कुछ कोशिश कर रहे हैं ताकि रिसाइकलिंग बाजार का भी जो है वो वेस्ट वो लोग ज्यादा इकट्ठा कर पाए, ज्यादा कमा पाए। एट द सेम टाइम ये जो रैक पिकर्स नहीं, कबाड़ी वाले लोग हैं, ये भी इनका भी लाइफ थोड़ा इनहेंस हो सके। सो दिस इज ऑल द थिंग जो कि करने की कोशिश हो रही है। तो रिसाइकलिंग बाजार दे कनेक्टेड विद अस, तरुमित्रा, एंड तरुमित्रा के आकर के उन्होंने ये बात करी तो हमने बोला ठीक है, लेट्स सी हाउ मच वी कैन सपोर्ट यू। तो जैसे आप लोग हैं तो आपके घर के आसपास कभी ना कभी तो कबाड़ी वाला दिन में 2 बार 1 बार कभी दिख जाता होगा या फिर हफ्ते में 1 आध बार दिख जाता होगा। यस सर। है ना। तो उन कबाड़ी वालों से हम लोग एक नेटवर्क मैप बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन सा कबाड़ी वाला कौन से एरिया में कब पिक करता है, कहाँ से पिक करता है, ताकि अगर मान लीजिए रिसाइकलिंग बाजार को भी अगर उस एरिया में मिलता है कुछ उनको वेस्ट पिक करने के लिए, तो वो इनको बोल दें कि आप ही पिक कर लीजिए, राइट। तो इस तरीके से चीजें करने की कोशिश हो रही है। तो ये मैपिंग का काम हमें करना है। मैपिंग में क्या होगा, मैपिंग कैसे करनी है? मैपिंग में बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना है। हमारे पास 15-20 कुछ सवाल है, जैसे सवाल में नाम है, एड्रेस है, कौन से एरिया में वो कचरा मतलब कि कबाड़ी पिक करने के लिए जाते हैं, और उनके बारे में थोड़ा बहुत, कितना कमा लेते हैं, उनके घर में कितने लोग हैं, है ना, ये सारी चीजें। फिर 1-2 सवाल के उनके पास फोन है कि नहीं है, अगर फोन कौन सा है, स्मार्टफोन है क्या, अगर स्मार्टफोन नहीं है तो वो जो बेसिक फोन है वो है क्या, वो भी नहीं है तो फिर देखेंगे कि कैसे उनको कनेक्ट कर सकते हैं वो। तो ये सारे कुछ सवाल है और ये हमारा गूगल फॉर्म बना हुआ है। वी विल शेयर द गूगल फॉर्म इन ग्रुप, मे बी आफ्टर दिस मीटिंग ईशा विल शेयर इट विथ यू। तो आप लोगों का काम ये होगा कि जो कबाड़ी वाले हैं उनसे हम लोग मिले और उनसे ये जो सवाल है करें, और सवाल करने के बाद उनसे ये जो गूगल फॉर्म है हम लोग भर दें। So, do you guys think this could be done? Yes sir. Yes, sir. Guys, I have shared the Google form. Please go through it. एक बार आप लोग देख लीजिए, and if you are facing any problem, then please एक बार आप लोग पढ़ लीजिए. We are pausing for we'll take a pause for 2 minutes. You can go through the form. और आप लोगों को कुछ लगता है कि इसमें अगर ऐसी कोई बात हम लोग करना चाह रहे हैं कबाड़ी वाले में, तो क्या क्या चैलेंजेस आ सकती है हमें? Sir, I have a question. Please. You were telling about the insurance of them. So वो जो इंश्योरेंस प्रीमियम होगा वो भरेगा कौन? ये रिसाइकलिंग बाजार वाले भरेंगे। ठीक है। और उसके बदले में मतलब कंपनी का जो मतलब फायदा क्या है इससे? कंपनी का फायदा होगा ना। अभी कंपनी मान लो कि अगर 1 किलो कचरा हर महीने बेच रही है, खरीद पा रही है, और खरीदने के बाद आगे रिसाइकलर्स को बेचती है, तो उनका प्रॉफिट होता है बीच में। तो अगर ये कबाड़ी वाले मिल जाएंगे तो मान लो 1 किलो से वो 1.25 किलो हो जाएगा।
तो 0.25 ग्राम्स 250 ग्राम जो बढ़ा, तो वो तो फायदा ही है ना। प्लस एट द अदर टाइम दूसरा फायदा क्या होगा कि अब ये रिसाइकलिंग बाजार को मान लो कि आप किस एरिया में रहते हैं? पटना सिटी में। पटना सिटी। अब मान लीजिए कि कब रिसाइकलिंग बाजार को आता है कि मुझे मान लीजिए आप ही बोल रहे हैं, रिसाइकलिंग बाजार से आप कनेक्ट हुए और बोले कि मेरे घर पे इतना कचरा है और मुझे बेचना है, तो अब रिसाइकलिंग बाजार को अपनी गाड़ी लेकर के आनी होगी आपके घर, है ना। तो वो अगर वहीं पे लोकल कोई अगर मिल जाता है और वो आपके घर से कचरा वेस्ट पिक कर ले, आपको पैसे दे दे, तो रिसाइकलिंग बाजार का काम आसान हो गया। Okay, okay, I understand. The company is like to connect that kabadi walas from everywhere. Yeah, That is it's the medium. as Yeah, it it would be is something similar to like Ola, Oreo and Ola Zomato. or Zomato. Yeah. something Zomato similar वगैरह. to Zomato. लेकिन जोमेटो क्या करता है, वो खाना पहुंचाता है रेस्टोरेंट से लेकर के, ये आपके घर से कचरा लेकर के पहुंचाएगा और आपके घर पे नहीं पहुंचाएगा, ये रिसाइकलिंग बाजार को पहुंचाएगा। बेसिकली इट विल क्रिएट ये पूरे रिसाइकलिंग का जो मार्केट है पटना में या फिर कहीं भी, ये अभी तक उतना फॉर्मल हुआ नहीं है। दीज आर सम ऑफ द सेक्टर्स जो कि बहुत ज्यादा इनफॉर्मल है अभी तक इंडिया में। सो इसको थोड़ा सा फॉर्मलाइज करने की कोशिश की जा रही है पटना में। बेसिकली ये थोड़ा सा अगर फॉर्मल हो जाएगा तो इससे कंपनी को तो बेनिफिट होगा ही, साथ ही साथ जो कबाड़ी वाले जो लोग होते हैं, भैया होते हैं, उनको भी बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा क्योंकि No, उनका कुछ idea is सर्टेन। so very innovative. But I have another question. या श्योर, Uh, प्लीज गो अहेड। What is Tarun Mitra and what is Recycle? What was the company? I'm sorry. Okay, I got it. He is confused between Recycling Bazaar and Tarun Mitra. Okay. रिसाइकलिंग बाजार इज अनदर कंपनी। ये एक नया स्टार्टअप है, पटना का ही है, और ये एन कॉलेज के कुछ 2 स्टूडेंट्स थे पहले, इनका भी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है, मास्टर्स भी हो गया है, अब ये और भी कुछ स्टडी कर रहे हैं साथ साथ में। सो ये स्टार्टअप था और ये इन्होंने स्टार्टअप के अंदर अपना ये भी किया है। सो इंक्यूबेशन में भी हैं ये लोग, तो वी आर जस्ट हेल्पिंग देम। Okay, Tarun Mitra is separate and Recycle Bazaar is separate. Completely different, yeah. Completely different. You are Tarun just Mitra helping is, them. yeah, Tarun Mitra is basically an NGO जिसमें अभी you are doing internship. we belong to Tarun Mitra, and Recycling Bazaar is a kind of a setup, startup है, and हम लोगों ने उनके साथ कोलैब किया है इस चीज में। वी आर जस्ट हेल्पिंग देम आउट सो दैट दे कैन क्रिएट अ नेटवर्क। जो वो चाह रहे हैं कि वो नेटवर्क बनाए पटना के अक्रॉस सारे एरियाज से, तो वी आर जस्ट हेल्पिंग देम। हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग कबाड़ी वाले भैया का इंटरव्यू नहीं, जस्ट अ गूगल फॉर्म इज देयर, इफ यू विल गो थ्रू इट। उसमें उनका नाम, पता, फोन नंबर, वो दिन में कितना कमाते हैं, उनका इंश्योरेंस है या नहीं है, फोन है या नहीं है, ऐसे करके कुछ बेसिक क्वेश्चंस है। वो आप कबाड़ी वाले से पूछिएगा, वो आपको रिप्लाई देंगे। आपको गूगल फॉर्म में भरना है ना, आपको गूगल फॉर्म सबमिट करना है, दैट्स इट। मैम तो उनसे उनका क्या प्रॉफिट होगा गूगल फॉर्म फिल करके? प्लीज डोंट कॉल मी मैम, आई एम ईशा, कॉल मी बाय माय नेम। एंड उनका प्रॉफिट ये होगा जैसे कि कंपनी है, सी देयर इज अ कंपनी, तो कंपनी में अगर एक फॉर्मलाइज हो जाता है कोई भी चीज, तो एक तो उनका मैन पावर बढ़ेगा। अभी उनके पास मैन पावर शॉर्टेज भी होगा क्योंकि उनके पास उतने नंबर ऑफ कबाड़ी वाले लोग है नहीं जितना उनको बेसिकली चाहिए। तो उनका एक तो मैन पावर बढ़ेगा, फिर उनका एरिया बढ़ेगा। जैसे कि वो लोग पूरे, हम लोग वी आर लिविंग इन डिफरेंट एरियाज ना, हम लोग एक जगह तो रहते नहीं है। आप लोगों में से कुछ लोग सिटी में रहते होंगे, कुछ लोग दानापुर वाले एरिया में रहते होंगे, कुछ लोग जगनपुरा वाले संपर्क चक तो वाले दी एरिया में उनको रहते हैं। जॉब असाइन करना है क्या? मतलब उनका फिल करके नेम एड्रेस ये सब लेके वो फिर रिसाइकलिंग वाले कंपनी में, मतलब उनको मतलब क्या एक ग्रुप बनाना है रैक पिकर्स वाले लोग का? अभी नहीं, ग्रुप अभी नहीं बनाना है, अभी हमें सिर्फ एक सर्वे करना है। ये सर्वे करने के बाद हमें रिसाइकलिंग बाजार को दे देंगे, रिसाइकलिंग बाजार फिर उनसे कनेक्ट करेंगे। कनेक्ट करने के बाद फिर वो लोग जो प्रपोजल होगा कंपनी का, वो प्रपोजल उनको बताएंगे, समझाएंगे कि हम लोग ऐसा करना चाहते हैं आपके साथ, आप क्या जुड़ना चाहेंगे। तो अगर वो जुड़ना चाहेंगे तो ठीक है, नहीं जुड़ना चाहेंगे तो वो लोग आपस में समझे कि क्या करना है। ठीक है, सो दिस Okay, इज मोर लाइक अ सर्वे। Recycling Bazaar wants some data of that practicals. या तो सर ये हम लोग को कहाँ मिलेंगे?
हम तो मतलब हम लोग को वहां तरुमित्रा आके वहां पे उस लोकेशन में ढूंढना होगा या कहीं भी नहीं मिलेंगे नहीं इस नहीं साइड नहीं में? नहीं नहीं, आपके घर के बाहर जो नॉर्मली जैसे कि ऐसे आप सुबह में उठ जाइएगा, शाम में या फिर दोपहर में जाइएगा, तो आपको मतलब वो कबाड़ी वाले दिख ही जाएंगे, मतलब दिन में एक बार आ ही जाते हैं वो मोहल्ले में। वी विल सी। अच्छे, तो आपको बस उनका थोड़ा सा सर्वे करना है। आप लोग, मैंने अभी गूगल फॉर्म आपके ग्रुप पे शेयर किया है, उसके आप एक बार देख लीजिएगा वो गूगल फॉर्म। उसमें बेसिकली कुछ बहुत बेसिक से क्वेश्चंस है, कुछ ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है उसमें। बहुत बेसिक से क्वेश्चन है, नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, कहाँ पे रहते हैं, फैमिली में कितने लोग हैं। तो ये सवाल आपको उन कबाड़ी वालों से पूछना है, एंड पूछ करके वो गूगल फॉर्म आपको भरना है, भर करके वो गूगल फॉर्म आपको सबमिट करना है। दैट्स इट, आपका काम यहीं पे खत्म। तो ये कौन किस किस दिन अच्छा ये तो हम लोग कर देंगे, लेकिन तरुमित्रा किस किस दिन आना है और कब कब आना है? क्या सेशन वगैरह, सुने हैं कि सेशन वगैरह भी होता है 3 days ऑनलाइन? या उसके बारे में आई विल लाइक टू टेल यू ऑल। हमारा बेसिकली हफ्ते में 3 दिन ऑनलाइन मीटिंग होता है। तो 3 दिन ऑनलाइन मीटिंग आप लोगों को ज्वाइन करना रहेगा। आपका इंटर्नशिप 2 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है, तो 2 अप्रैल के बाद से ही आपको एक आपके मेल पे, जो आपने मेल से रजिस्टर किया होगा, उस मेल पे आपको मीटिंग्स का सारा फॉर्मेट चला जाएगा विथ डेट। 3 महीने का फॉर्मेट होगा वो, विथ डेट एंड विथ मीटिंग का लिंक। रिकरिंग मीटिंग होगा, सो उसका आपको पूरा डेट टाइम टेबल आपको मेल पे सेंड कर दिया जाएगा। आपको उसी के अकॉर्डिंग मीटिंग्स ज्वाइन करना है। अल्टरनेट डेज मीटिंग होता है, लाइक डेली नहीं होता है, इट इज अल्टरनेट डेज। एंड हफ्ते में 3 दिन यू हैव टू कनेक्ट विथ ऑनलाइन मीटिंग 8:30 बजे के आसपास, 8 या 8:30 बजे के आसपास मेनली वी कीप मीटिंग। एंड संडे को वी हैव टू मीट इन तरुमित्रा। तो संडे को बेसिकली 10 साढ़े 10 11 बजे तक हम लोग तारुमित्रा मिलते हैं। 10:30 से 11 बजे के बीच में हम लोग वहाँ पे पहुंच जाते हैं। सो संडे को हम लोग एग्जैक्ट टाइम इज 2 to 3 hours, 3 hours we take hardly. What's the location of Taranitra? तारुमित्रा इज आशियाना दीघा, आपने देखा है? सीआरपीएफ कैंप, सीआरपीएफ हेडक्वार्टर्स, यू मस्ट बी नोइंग, अगर आप जानते होंगे तो। Yeah. ओके, आशियाना दिखाई। Don Bosco School. या शिट, हम कैसे भूल सकते हैं? मैम Don टीटीएस Bosco में होगा कि एमडब्ल्यूएफ में होगा? TTS, MWS, please help me out with it. ट्यूसडे, Monday, थर्सडे, Wednesdays. सैटरडे, वेडनेसडे। वो आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा, वो आपको मेल पे, प्लीज चेक, कीप चेकिंग योर मेल। आपको अभी 1 वीक के अंदर आपका इंटर्नशिप, जैसे कि 2 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, तो 2 से 3 के बीच। या प्लीज। कि गंगा एक्शन पे भी, क्लीन अप पे कुछ भी प्रोग्राम हो रहा था ना, सर्वे वगैरह, ये सब पे भी तो शायद हो रहा था ना? हाँ एग्जैक्टली, उस पे भी हम लोग काम कर रहे हैं। तो वो तो अभी लाइक जिस बैच में अभी मैं हूँ, वी आर वर्किंग ऑन दैट। आपका बैच अलग है। मतलब हर बैच का अलग अलग वो होता है सर्वे? नहीं, सर्वे नहीं होता है, लाइक हम लोग बस, सी बेसिकली, लाइक आई एम ऑल्सो एन इंटर्न है। तो जहाँ तक हम इस पूरे इंटर्नशिप को समझे हैं, इट इज वी ट्राई टू हेल्प पीपल, वी ट्राई टू शॉर्ट मतलब हम लोग डिस्कशन करते हैं ऑनलाइन मीटिंग में। बेसिकली हम लोग डिस्कस करते हैं डिफरेंट टॉपिक्स पे। इफ यू लाइक टू डिस्कस अबाउट सम टॉपिक, आपको कुछ लगता है कि कुछ बहुत ज्यादा रिलेटेबल है आपके इन्वायरमेंट से, या फिर आपके मतलब वाटर, एनिमल्स, एनीथिंग, तो वो आपको टॉपिक ला सकते हैं ऑनलाइन मीटिंग में, इफ यू वांट टू डिस्कस अबाउट इट। तो उससे रिलेटेड हम लोग ऑनलाइन मीटिंग में डिस्कशंस करते हैं 3 दिन हफ्ते में। एंड संडे के संडे हम लोग ऑफलाइन मिलते हैं। उसमें हम लोग वी वर्क आउट, वी लाइक वी डू सम काइंड ऑफ एक्टिविटीज, वी टॉक विथ ईच अदर, हम लोग इंटरेक्ट करते हैं। एंड इस टाइम टू टाइम हम लोग डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे भी काम करते हैं, लाइक वी गो ऑन क्लीन अप ड्राइव। अभी हम लोग कबाड़ी वाले पे भी काम कर रहे हैं। सो दीज आर द कैन वी सम ऑफ ज्वाइन विथ क्लीन अप ड्राइव? क्लीन अप ड्राइव वाज, अभी तक तो आज का लास्ट क्लीन अप ड्राइव था। आगे फ्यूचर में इट विल हैपन, तो श्योरली यू हैव टू जॉइन विद क्लीन अप ड्राइव। सो वो आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा। फिलहाल के लिए आपके पास 2 काम है। पहला, आपको कबाड़ी वाले का इंटरव्यू लेना है, एंड ये आपको, यू आर हैविंग 1 वीक का टाइम। 1 वीक के अंदर यू कैन सबमिट। 1 का लेना है, आप 1 का ले सकते हैं, 2 का लेना है, इट टोटली डिपेंड्स अपॉन यू। आप जितने का लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं। आप अगर 1 का लेना चाहते हैं आप 1 का ले सकते हैं, 2 का मतलब योर विश।
एंड सेकेंड वर्क इज दैट कि आपको 2 तारीख को 2nd of April को आपको 11 बजे तारुमित्रा आना है. Is And it इसके necessary to join on 2nd April? Because we have our exams. this on question, sir, please. तो जिनका एग्जाम है वो तो ठीक है, आई कैन अंडरस्टैंड. आप एग्जाम के बाद नेक्स्ट संडे से आप ज्वाइन कर लीजिएगा, नो वरीज. अच्छा, एग्जाम किसका किसका है यहाँ पे? कैन यू रेज योर हैंड्स? सर मेरा हम भी. लोग का है पटना वुमेन्स का एंड सेम 26 अप्रैल से 6 मई तक. तो सर जिसका एग्जाम है वो अभी ड्रॉप करके फिर बाद में एक्सटेंड नहीं कर सकता है जून में? एग्जैक्टली, तो मैं तो कह रहा हूँ कि अगर 24 अप्रैल से एग्जाम है. नो सर, नहीं, नहीं, 26 अप्रैल. 26 अप्रैल. April, Ritika? 3rd No, ma'am, April to मेरा 10th April. April. 3rd April से 10th April, sir. ठीक है, तो 3rd से 10th जिनका जिनका है वो लोग एग्जाम के बाद, मैं तो कहूँगा फिर आप लोग एग्जाम के बाद ही इंटर्नशिप स्टार्ट कीजिए फिर, जिनके एग्जाम है. और जिनका नहीं है सर वो कर सकता ना? हाँ, they can come. क्योंकि Sir, एक what about जिनका और सर 26 अगर April से? जो बीच में अगर मान जाइए मैम कुछ प्रॉब्लम के नहीं, चलते नहीं, नहीं, मिस करती नहीं, है. don't call me Isha, please. Call me Isha. I am with you only. I'm your batchmate. Please call me Isha. ओके ईशा, अगर बीच में कुछ प्रॉब्लम हो गया तो उसको छोड़ना पड़ा तो क्या वो मतलब 3 मंथ्स एग्जैक्ट पूरा करना ही पड़ता है कि अगर बीच में छूट गया 1-2 दिन तो वो मैनेज हो Okay. सकता है? हाँ, ओके, ठीक है. अगर इसका बीच में आपको ब्रेक लेना है, अगर किसी भी कारण से आपको मान लीजिए गांव जाना है, एग्जाम बीच में कुछ आ गया है, या फिर आपको शहर से बाहर जाना है, तो टेक अ ब्रेक. 1 हफ्ते का, 2 हफ्ते का, या फिर 3 हफ्ते का, 1 महीने का, 2 महीने का, जितना ब्रेक लेना है ब्रेक लीजिए. फिर एट द एंड ऑफ द डे आप जब वापस आते हैं तो अपना इंटर्नशिप का जो भी आपका वर्क है उसे कंप्लीट कीजिए, 3 महीने का पूरा कंप्लीट कीजिए. एंड आई वुड सजेस्ट कि बीच में छोड़ने से ना 1 महीने का इंटर्नशिप का कोई वैल्यू नहीं है. सर 3 मंथ्स में 4 क्रेडिट मिलेगा ना? वो क्रेडिट आपके कॉलेज पे डिपेंड करता है कि वो कितना क्रेडिट देना चाहता है, या फिर उनका वो आपके कॉलेज के ऊपर होता है. बट 3 मंथ्स क्रेडिट वाला हम थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं. इट्स लाइक हम लोग मीटिंग्स करते हैं, हफ्ते में 3 मीटिंग्स करते हैं, तो 3 मीटिंग्स का वी आर कैलकुलेटेड 3 घंटा. एंड ऑफलाइन मीटिंग हम लोग हफ्ते के हफ्ते 3 घंटा मिनिमम मिलते हैं. लाइक 11 बजे से लेकर के 2 बजे तक मिनिमम टाइम इज 3 घंटा. तो मतलब 1 वीक का इट इज 6 आवर्स. सो उसी के अकॉर्डिंग 15 घंटे पे 1 क्रेडिट मिलता है. तो आप उसी के अकॉर्डिंग 3 महीने का कैलकुलेट कर लीजिए, आपका कितना क्रेडिट हो जाएगा. 3 मंथ्स का तो हो जाएगा 4 क्रेडिट. हाँ, तो हो जाएगा. आराम से हो जाएगा. बट लेट्स थिंक, थोड़ा सा फ्यूचरिस्टिक होके सोचिए ना. आप अभी कॉलेज में हैं, लेकिन कॉलेज के बाद आप क्या कीजिएगा? कहीं ना कहीं तो काम कीजिएगा. यस सर. नौकरी करना है या फिर बिजनेस करना है, तो कोई बात ही नहीं है. लेकिन अगर नौकरी करना है, कहीं पे जॉब करना है, तो वहां पे जो अपने सर्टिफिकेट्स लगाएंगे, साथ में अपने इंटर्नशिप का सर्टिफिकेट भी लगाएंगे. तो वहां पे अगर आपका 3 मंथ्स या 6 मंथ्स का इंटर्नशिप का सर्टिफिकेट है, तो इट हैज अ लॉट ऑफ वेटेज. अगर 1 महीने का रहता है तो उसको उतना ज्यादा वेटेज नहीं मिलता है. आई एम टॉकिंग फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ कि अगर आप कहीं जॉब करना चाहते हैं तो. सो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आपका जो बीच में मान लीजिए अगर आपको गैप है या फिर आपको ब्रेक लेना है, यू टेक अ ब्रेक. But after a break, you come back and you continue, complete your 3 months. So we gave you 3 months ka certificate. I can give you 1 week ka certificate also if you want. I don't have any problem with it. Another question I have. If हम लोग बीच में छोड़ते हैं. Okay. Amarjeet, say first. Neha, then after Amarjeet, you ask your question. If हम लोग 1 मंथ का मतलब पूरा करते हैं, उसके बाद बीच में ब्रेक ले लेते हैं, तो फिर हम लोग को आके 3 महीना पूरा करना पड़ेगा या 2 महीना और? ओके, लाइक सपोज आप लोग अभी हैं तो यू ऑल मस्ट बी कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स, राइट? इसको थोड़ा प्रैक्टिकली हम लोग देखते हैं. तो आप लोग यहाँ पे सारे लोग कॉलेज जाते हैं, ठीक है? तो बहुत एक्सटेंड तक आप लोग 1 महीने का ब्रेक तो नहीं ही लीजिएगा, जहां तक मेरी प्रैक्टिकलिटी सोच पा रही है. आप लोग मैक्सिमम अगर एग्जाम्स है तो यू विल टेक मैक्सिमम ऑफ 2 वीक का ब्रेक. तो वो जो 2 वीक का या 3 वीक का आप लोग ब्रेक लीजिएगा,
वो आपका वहाँ पे इंटर्नशिप स्टॉप हो जाएगा जिस दिन आप you will have to notify, you have to send a message कि I'm on going on a leave with your respective reason कि ये मेरा reason I will out of station या फिर मेरा एग्जाम है कुछ भी, तो उससे आपको एक मैसेज छोड़ करके जाना होगा. उस डे से लेकर के योर इंटर्नशिप विल बी पॉज. उसके बाद जब भी अब यू विल रिटर्न उसी टाइम से ये रिज्यूम होगा. लाइक अगर आपने 3 हफ्ते के बाद ब्रेक लिया है तो आपने 3 हफ्ता काम किया है, फिर आपके बचे हुए वीक्स उसके बाद काउंट होंगे. लाइक व्हेन आप लोग वापस आइएगा तो दैट विल बी योर 4th वीक. Okay. Understood? And so far we all are college going students, तो I don't think कि 1 महीने या 2 महीने का कोई ब्रेक लेंगे, because कॉलेज भी तो जाना होता है ना. आप पूरे साल का ब्रेक ले लीजिए ना, लेकिन मुझे नहीं लगता कि 1 साल का ब्रेक लेने के बाद आप वापस आएंगे सर्टिफिकेट करने के लिए. सर सर्टिफिकेट में तरु मित्रा का वो इंटर्नशिप का लिखा होगा या फिर जो हम लोग सर्वे कर रहे हैं जिस चीज पे काम कर रहे हैं वो चीज का भी लिखा होगा, रैक पिकर्स वाला, क्लीन अप ड्राइव, ये सब भी लिखा होगा. और सर क्या आप कोई सर्टिफिकेट दिखा सकते हैं कैसा? सर्टिफिकेट कैसे दिखाऊंगा यार मैं? सर्टिफिकेट में पुराने कुछ इंटर्न्स हैं उनको मिले हुए होंगे, तो उनसे आपके कॉलेज के भी कुछ बच्चे हैं उनको मिले होंगे, आप उनसे देख सकते हैं. और इसमें देखना क्या है, सर्टिफिकेट होता है यार. सर्टिफिकेट आपको तारू मित्रा के तरफ से ही मिलेगा, उस पे तारू मित्रा ही मेंशन रहेगा, उसमें यही लाइन लिखा रहेगा कि आई हैव कंप्लीटेड 3 मंथ का इंटर्नशिप इन तारू मित्रा आश्रम. एंड ये जो हम लोग सर्वे कर रहे हैं ये तारू मित्रा की इंटर्नशिप के अंदर हम लोग कर रहे हैं. जैसे ओके सपोज यू डू मतलब बीए का डिग्री करते हैं ना आप लोग, तो बीए का डिग्री आपको मिलता है. बीए के डिग्री के अंदर आप लोग डिफरेंट सेमेस्टर्स का एग्जाम देते हैं. तो डिफरेंट सेमेस्टर्स का जस्ट सपोज इसको ऐसे ले लीजिए कि ये एक लिस्ट ऑफ काम है जो हम लोगों को इंटर्नशिप के अंदर कंप्लीट करना रहता है. ये सर्वे उनमें से एक है एंड आपको इंटर्नशिप का ही सर्टिफिकेट मिलेगा. या नेहा प्लीज गो अहेड. सो सॉरी. मेरा क्वेश्चन ये था ना कि मेरा संडे को क्लास रहता है और वो कभी 11:30 में होता है या 2:30 में होता है. अगर 2:30 में क्लासेस हो रहे हैं तो उसमें तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम आ सकते हैं. पर अगर 11:30 में क्लासेस हो रहे हैं तो बीच में गैप होते रहेगा, तो उस केस में क्या करें हम? That is a problem. That would be a problem then. We'll have to figure some way out. अगर आपका 2:30 बजे से क्लास है then it's okay. आप आइए सुबह 11 से 2 बजे तक या फिर 1:30 बजे तक रहिए. 1:30 बजे के बाद आप चले जाइए, आपका जहाँ क्लासेस कीजिए. बट बिकॉज संडे इज द ये पूरा जो हमारा सिस्टम है ना, ये संडे को ही हम लोग, बिकॉज वी ऑल्सो अंडरस्टैंड कि आप मंडे टू फ्राइडे तो आप कॉलेज में रहते हैं, सो यू कैन नॉट गिव योर टाइम टू तरह डिफरेंट, राइट. तो वी हैव डिजाइन कि संडे को ही तो आपका समय हम यूज कर सकते हैं, लेकिन आप संडे को भी अगर आप बिजी हैं तो नॉट श्योर हाउ इट्स गोइंग टू वर्क. ओके सर. Ma'am, sorry, Isha, in Google form, there is उसमें फोन टाइप लिखा हुआ है कि स्मार्टफोन एक बेसिक मोबाइल फोन, तो उसमें से क्या मतलब वो ये समझ नहीं आया ये वाला. ओके हम एक बार गूगल फॉर्म समझा ही देते हैं. जस्ट हमको 1 मिनट दीजिए, हम खोलते हैं अपने लैपटॉप पे. अब जैसे वो जो कबाड़ी वाला है उसके पास कौन सा फोन है, बेसिक फोन है या स्मार्टफोन है या फोन है ही नहीं? ओके आप लोगों ने गूगल फॉर्म खोला होगा तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन इज नेम ऑफ इंटरव्यूअर. इसमें आप लोग अपना नाम लिखेंगे, पूरा नाम लिखेंगे, आपका पूरा जो भी नाम है. उसके बाद नेम है, नेम में आपको कबाड़ी वाले का नाम लिखना है, बर्थ प्लेस या होम टाउन कबाड़ी वाले का मतलब होम टाउन कहाँ है वो. वर्क प्लेसेस वो किस एरिया में कलेक्ट करता है, लाइक अगर सिटी में कलेक्ट करता है तो यू विल मेंशन सिटी, अगर वो संपर्क चक में कलेक्ट करता है तो यू विल मेंशन संपर्क चक कहीं भी, ठीक है. बोर्डिंग रोड में कलेक्ट करता है तो बोर्डिंग रोड. एरिया कवर इन डे तो वो उसके हिसाब से. हाउ लॉन्ग दे वर्क दैट आल्सो डिपेंड्स. फोन टाइप मतलब उस कबाड़ी वाले के पास मतलब उस भैया के पास कौन सा फोन है, फिर ही इज यूजिंग स्मार्टफोन और ही इज यूजिंग बेसिक बटन वाला फोन. नहीं है तो है ही नहीं तो ऑप्शन इज नॉट गिवन देयर. अच्छा हाँ ओके देन यू कैन लीव. दिस इज नॉट मैंडेटरी क्वेश्चंस.
अगर आप वहाँ पे देखिएगा तो Want वहाँ me पे to share the मैंडेटरी का कुछ screen? साइन नहीं है, यू कैन लीव दैट क्वेश्चन। या सर, आई कैन शेयर माय स्क्रीन। Is it visible? Yeah. Yeah. So this question, it is not, ये सारे questions mandatory नहीं है, तो अगर उनके पास कोई phone नहीं है तो आप इस question को छोड़ सकते हैं। Then since how long he involved in recovering valuable from waste, तो this is the again the duration, why he chose this work, तो इसमें वो जो उनका respective answers होगा, family problems या फिर उनका out of choice ये काम था या फिर anything. Earning उनका, फिर education qualification, number of family members, challenges faced in daily basis, challenges faced, and then आपको ये भी पूछना है कि वो उन जो hazardous materials use करते हैं, like जो लैपटॉप्स होता है, आपको यू मस्ट बी नोइंग, जो लैपटॉप होता है या फिर जो फोन बहुत टाइम से रखा रहता है, हम लोग फोन फेंकते नहीं है, तो उसमें अपने आप मतलब बहुत सारे हजारियस में केमिकल्स यूज होते हैं, तो वो रखा 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 मतलब इट इज काइंड ऑफ हजारियस टू ह्यूमन। तो ये उनको पता है कि नहीं है कि वो किस डेली बेसिस पे किस हजारियस मटेरियल से डील करते हैं, यस और नो? मैम हम लोग को भी नहीं पता है। Okay, so you will get to know in this internship. How long they go through any program, how to handle waste, this also depends. Governmental support उनको मिलता है कि नहीं, फिर अगर उनसे हम लोग कोई ट्रेनिंग सेशन करवाना चाहते हैं तो वो लोग अपना मतलब कर सकते हैं नहीं, मार्क्स लव वगैरह, दिस आर ऑल द बेसिक क्वेश्चंस, आपको पता चल जाएगा what they will answer अपने रिस्पेक्टिवली, they will give their answers, मोबाइल नंबर वगैरह, हेल्थ चैलेंजेस इस फेसेस। तो बेसिकली ये है, दिस इज अ गूगल फॉर्म, ये आपको भरना है कबाड़ी वाले का सर्वे करके। मैम मैंडेटरी नहीं ना है कि इतना ही फॉर्म फिल करना है? नहीं, मैंडेटरी नहीं है, डिपेंड्स, अगर आप 1 का करना चाहते हैं 1 का कर सकते हैं, 2 का करना चाहते हैं 2 का कर सकते हैं, 10 का करना चाहते हैं 10 का कर सकते हैं, 20 का करना चाहते हैं 20 का कर सकते हैं। टोटली डिपेंड्स अपॉन यू, आप कितने का करना चाहते हैं, कितने का आप करना चाहते हैं। लाइक बेसिकली आई वुड सजेस्ट कि आप जितने ज्यादा लोगों को रीच कर पाइएगा, प्लीज ट्राई करिएगा करने का, बिकॉज इससे आपको कोई फायदा तो नहीं होगा, आपको तो आपका तो ये इंटर्नशिप का पार्ट है, तो यू हैव टू डू, बट समवेयर इट विल हेल्प दैट कबाड़ी वाला भैया बहुत ज्यादा, क्योंकि उनका जो पूरा ये होता है ना, इकोनॉमी होता है, वो बहुत ज्यादा अनफॉर्मलाइज इकोनॉमी है वो। तो वो कभी एक दिन वो लोग 200 कमाते होंगे, फिर एक दिन कभी वो लोग 1000 कमाते होंगे, तो ये बहुत ये क्रिएट करता है। तो अगर उनका पूरा सेक्टर हम लोग इनफॉर्मलाइज कर पाते हैं तो बहुत अपने आप में ही बहुत बड़ी चीज है। जैसे आज हम लोग जोमेटो देखते हैं, ओला देखते हैं, तो ये भी किसी ना किसी ने सोचा था ही एक टाइम पे, उस टाइम भी लगता था कि इतना बड़ा फॉर्मलाइज नहीं हो सकता है, ऑटो वाले को कैसे कोई फॉर्मलाइज कर देगा, लेकिन आज हम लोग देखते हैं ना, वी यूज ऑटो एंड वी यूज कार्स, तो जस्ट उसी सेक्टर में वी आर वर्किंग, सो प्लीज ट्राई टू डू इट as much as कबाड़ी वाला you can reach out to, please do. And on 2nd of April we are meeting in Tarumitra, 11 बजे is the timing, आपको वहां पे आना है, एंड जिसका एग्जाम है वो नेक्स्ट संडे से आ सकते हैं। एक क्वेश्चन और है मैम, सॉरी Sure. ईशा। ईशा, सिर्फ कबाड़ी वाले को लेना है या भंगार वाले को भी ले सकते हैं, जिसका जो शॉप होता है स्पेसिफिकली ऑन दैट भंगार वाले को? नहीं, कबाड़ी वाले को ही लेना है, वो जो कबाड़ी वाले जो ठेला लेकर के चलते रहते हैं रोड पे, लाइक उनका न्यूज़पेपर, इंटरव्यू लेना है। वो लोग जो बोलते हैं कि न्यूज़पेपर एंड ऑल उन लोग को चाहिए होता है, वही लोग ना? हाँ हाँ, वही रैक लोग। पिकर्स और बच्चों को भी ले सकते हैं क्या? नहीं नहीं, कबाड़ी वाला मतलब कार्टन, न्यूज़पेपर, बुक्स, जिनको आप बेचते वो हैं वो ठेला आपको लेकर पैसे आते हैं देते ना, हैं। जो आपसे आपके घर से वेस्ट ले जाते हैं और आपको पैसा देते हैं। लाइक द न्यूज़पेपर वेंडर्स। हाँ हाँ, न्यूज़पेपर वेंडर्स, या वो तो Okay. फिर वो कहीं ना कहीं तो जाके वो तो सेल करते ही होंगे ना सर, तो फिर उनका तो वैसे भी तो रिसाइकलिंग वाले कंपनी से अटैचमेंट होगा ही, तो फिर वो फायदा क्या हम लोग को फिर उनको वहां भेज के? नहीं, वो क्या करते हैं, वो बड़े भंगार में जाके बेचते हैं, जो अभी अमरजीत ने बोला ना कि भंगार वाले को भी कर सकते हैं क्या, तो वो डेली वहां से कलेक्ट करते हैं, और बड़े कबाड़ी वाले जो होते हैं भंगार वाले, उनको जो जिनका सेटअप होता है जहाँ पे वो अपना बेच सकते हैं,
तो ये बड़ा अजीब सा सिस्टम है, इसमें अलग तो अलग वहां भी तो पैसा उनको मिलता ही होगा ना, वो रेडी नहीं होंगे रिसाइकलिंग कंपनी में जाने के लिए। वो आपका प्रॉब्लम नहीं है ना, और वो मेरा प्रॉब्लम भी नहीं है। आपको बस उनका सर्वे करना है। चॉइस, उनको चॉइस तो देना पड़ेगा ना। आप चिकन खाना चाहते हैं या मटन खाना चाहते हैं? अगर मैं खिला रहा हूं तो मैं आपसे पूछ सकता हूँ ना कि आप क्या खाना चाहते हैं, यस सर। है कि सर आपने जो दोनों ऑप्शंस में से बताए कुछ थे, नहीं खाना? आई एम सॉरी, प्लीज। आपने जो ऑप्शंस बताए तो मुझे फिर से बताइएगा, मैंने सुना नहीं ठीक से। कौन सा ऑप्शन? न्यूज़पेपर वाला, और क्या बताया था आपने? आई ओनली हर्ड दैट न्यूज़पेपर्स, लास्ट। कार्टन्स वगैरह, या फिर जो लोग फोन्स लेते हैं ना, अरे जो लोग, अच्छा ओके, दिवाली में जो लोग आते हैं, जो लोग आपसे पुराना सामान लेकर के नहीं, जाते वो आई हैं, अंडरस्टैंड। मेरा या क्वेश्चन ये था कि वो जो लेने आते हैं ना, उन लोग का भी एक छोटा छोटा दुकान होता है, मतलब नॉट एट द बिग स्केल बट वेरी स्मॉल स्मॉल। नहीं नहीं, वो थोड़ा आप ऊपर लेवल में चले गए। लेट मी गेट ऑन दैट। या तो सही बात है, वही मैं बोल रहा हूँ अमरजीत, कि ये जो पहले जो ठेले वाले जो होते हैं, ये ठेले वाले उन दुकान वालों को बेचते हैं, फिर वो दुकान वाले इकट्ठा करके रखते हैं। जब उनके पास पूरा एक ट्रक के जितना मतलब सामान हो जाता है, फिर वो, क्योंकि वो चीजें रिसाइकिल आपके पटना शहर में नहीं हो रही है, वो हो रहा है दिल्ली में, वो हो रहा है गाजीपुर में, वो हो रहा है गाजियाबाद में, वो हो रहा है आपका साउथ इंडिया में जाकर के, वो हो रहा है आपका बॉम्बे के पास। ठीक है, तो वो एक ठेला जो है वो उतना वेस्ट तो वो बॉम्बे तक लेके नहीं जा सकता है। तो इसे बहुत चैनल है ऑलरेडी, देयर आर लॉट ऑफ चैनल्स, और ये सारे चैनल काम कर रहे हैं। लेकिन इसमें गवर्नमेंट की पॉलिसी भी आ गई है कि बहुत सारी चीजें हैं, वेस्ट हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है, प्लास्टिक वेस्ट है, तो ये सब लोग इसको रिसाइकिल नहीं कर सकते हैं। When we will start our internship, no, तो मैं एक पॉलिसी के ऊपर आप लोगों का एक सेशन भी रखूंगा, जिसपे हम लोग इन सब चीजों के ऊपर डिस्कशन करेंगे कि why it is necessary। और जैसे एक चैनल पूरा जो बना हुआ है, तो ये चैनल में ऑलरेडी सही बात है, वो बेच रहे हैं, सब कुछ चल रहा है, लेकिन अगर उनको ज्यादा वेस्ट मिल रहा है तो वो ज्यादा पैसा कमाएंगे ना। सर, या मतलब मेरा कंफ्यूजन ये था कि मुझे कैसे पता चलेगा कि जो रैट पिकर्स का मैं इंटरव्यू ले रहा हूँ, जो ठेला लेके आ रहे हैं, उनका सच में शॉप है या नहीं, ये पूछना पड़ेगा ना पहले उनसे। शॉप नहीं 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 नहीं, वो आपको नहीं पूछना है, या आप पूछ लीजिए, आप, बहुत बड़ा इंटरेस्ट का बात नहीं है वो हमें जानने की जरूरत नहीं है, वो रिसाइकलिंग बाजार को भी उससे मतलब नहीं है बहुत ज्यादा। और अगर मान लीजिए वो छोटे छोटे अगर उनका दुकान भी है, तो वो भी रिसाइकलिंग बाजार से कनेक्ट हो सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि वो एट द एंड ऑफ द डे किसी ना किसी को तो वो बेच ही रहा है ना। अगर मान लीजिए रिसाइकलिंग बाजार उसको बेटर प्राइस दे रहा है, या फिर जहां वो बेच रहा है वहीं उसको बेटर प्राइस मिलेगा, तो वो वहीं बेचेगा। अगर रिसाइकलिंग बाजार उसको बेटर प्राइस देगा तो वो रिसाइकलिंग बाजार को बेचेगा, एज सिंपल एज दैट। लेकिन ये सर चॉइस, या सर तरुमित्रा, ये कबाड़ी वाले को ये कौन से रिसाइकलिंग बाजार में मतलब वो करने वाले हैं, मतलब हम लोग का जो सर्वे रिसाइकलिंग बाजार इज अ नेम ऑफ अ स्टार्टअप। या इट्स अ वो ब्रांड, इट्स अ ब्रांड। जैसे जोमेटो है, स्विगी है ना, वैसे एक कंपनी है रिसाइकलिंग बाजार नाम से, इनकी पटना में ही। वेबसाइट, हाँ पटना है ये। तो ये कबाड़ी वाले को वो करते हैं, अपॉइंट हाँ, करके, मतलब फिर पैसा देते हैं, वो भेजते हैं। उनकी वेबसाइट है, उनकी वेबसाइट पर जाके चेक कर सकते हैं, recyclingbazaar.com। Is it enough, or do you have more questions to shoot? I'm happy to answer. नो सर। Nice. तो हम लोग देखिए, किसी का क्या फायदा हो रहा है नहीं हो रहा है उससे हमें बहुत ज्यादा मतलब नहीं, और अगर किसी को बेटर चीज मिल रही है तो उसको चॉइस देने में क्या हर्ज। और दूसरी बात कि ये काम आप क्यों करें, तो इस सवाल का सबसे आसान सा सवाल ये है कि आपने जो इंटर्नशिप अप्लाई किया है तरुमित्रा में,
ये एक एनवायरमेंटल इंटर्नशिप है। तो यहाँ पे हम कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट फ्रेंडली चीजों को सपोर्ट कर रहे हैं। अगर आप हमारा वेस्ट इधर उधर जा रहा है, या फिर अगर जो वेस्ट में डील कर रहे हैं जो लोग, उनकी लाइफ अगर बेटर हो रही है, तो शायद ये एक एनवायरमेंट के लिए भी अच्छी चीज है। क्योंकि ये जो कबाड़ी वाले, अगर आप इनको देखिएगा तो इनका लाइफ स्पेन बहुत ज्यादा नहीं होता है। दे लिव मैक्सिमम अप टू 35 to 40 ईयर्स। 40 साल से ज्यादा ये नहीं जी पाते हैं। क्यों? क्योंकि ये बहुत सारे ऐसे वेस्ट को हैंडल करते हैं अपने हाथों से डायरेक्ट। ग्लव्स तो पहनते नहीं है। ग्लव्स का नाम तो हमने सुना है कोविड में। मास्क, ग्लव्स, सैनिटाइजर, ये तीनों चीज हमने कब सीखा, कब जाना है इनको? 2020। जब कोविड आया। तो उसके पहले तो हम भी नहीं जानते थे। तो ये जो वेस्ट कलेक्ट करते हैं, ये तो कभी नहीं करते हैं। इनका कभी हाथ आप जाकर के देखिएगा। अगर इनसे आप जब इंटरव्यू कीजिएगा तो इनके बॉडी को अगर आप देखिएगा, इनका स्किन टाइप देखिएगा, इनके स्किन में कहीं ना कहीं आपको बहुत ज्यादा स्कार्स मिल जाएंगे। कुछ स्किन डिजीज भी हो सकता है कि इनको होगा। फिर इनकी जो हथेली होगी ये फटी हुई होगी, यहाँ पे बहुत सारे क्रैक्स होंगे, उंगलियों में भी क्रैक्स होंगे। जैसे लोगों के विंटर्स में हमारे पाँव में क्रैक आता है ना, इनके हाथ में क्रैक होता है, उंगलियों में। तो उस तरीके का इनका लाइफस्टाइल है। तो कैसे काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो शायद उनका लाइफ अगर बेटर कर पाए हम लोग, क्योंकि वो हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन रखने में मदद कर रहे हैं, तो शायद उनकी मदद भी तो किसी न किसी को तो करनी चाहिए। और शायद अगर हम अपने इंटर्नशिप में इस चीज को कर पाएंगे तो शायद हम लोग भी एक समझ पाएंगे कि ये लोग क्या काम करते हैं, कैसे काम करते हैं। एक तो ये पार्ट है। और सिर्फ यही नहीं, हम लोग इंटर्नशिप में और भी बहुत सारी चीजें करेंगे। दिस इज वेरी सिंपल थिंग। आपको 4-5 लोग अगर जो मिलते हैं आपके घर के आसपास आते हैं, ऐसा नहीं कि इनको आपको ढूंढने के लिए कहीं आपको जाना है और ये करना है। आपके घर के आसपास जो कभी आ रहा है, बस उन्हीं से बात कर लेना है। सर हर वीक हमारा चेंज होगा ना सर्वे, यही रहे? ये हम लोग मिलके डिसाइड करेंगे। जब हम लोग 2 तारीख को मिलेंगे ना, तो 2 तारीख को मिलने के बाद हम लोग डिसाइड करेंगे कि हम लोग सर संडे को टाइम 11 बजे। 11 बजे। या 11 से 2। सर इस गूगल फॉर्म को कब तक सबमिट करना है? यू आर हैविंग 1 वीक का टाइम। ये हम अपने जो इंटर्नशिप स्टार्ट हो रहा है 2 तारीख से पहले अगर कर दें तो बेटर रहेगा। 11 से कब तक चलेगा? 11 से 2। I will not coming on 2nd of April. No worries. You come on the next Sunday. Okay, thank you, sir. लेकिन ये गूगल फॉर्म वाला काम हम लोग 2 तारीख के पहले कर दे तो बेटर है। सर एक बार एड्रेस बता दीजिए ना। एड्रेस It's available on net. आपको गूगल मैप आप लोगों के साथ शेयर कर दिया जाएगा 2 तारीख से पहले। डोंट वरी अबाउट दैट। मैं भी चाहता हूं कि आप लोग यहाँ पे आने के लिए आप लोग को ज्यादा परेशानी ना हो, तो उसके पहले ग्रुप में ही मैं यहाँ का लोकेशन शेयर कर दूंगा, आप लोग आराम से आ सकते हैं। ठीक है? ओके सर। Any more questions before we close the meeting for the day? No, sir. Then shall we call it a night then? Thank you, I have a sir. question. या प्लीज। आपने बोला था कि क्रेडिट जो है कॉलेज डिसाइड करेगा, तो कॉलेज क्यों करेगा हमारा क्रेडिट डिसाइड? क्योंकि ये इंटर्नशिप तो हम लोग कॉलेज के थ्रू कर नहीं रहे। ओके ठीक है। हम लोग इंटर्नशिप यहाँ पे कर रहे हैं तो हम लोग को एक सर्टिफिकेट मिलेगा। ठीक है, तो वो सर्टिफिकेट बेस होगा आपके इंटर्नशिप। Just give me a minute, Isha. I'm sorry to interrupt. या सर श्योर। अलग-अलग कॉलेज का ना अपना सिस्टम होता है। ठीक है, हर एक कॉलेज। तो सर कॉलेज अगर नहीं माना तो वो तरु मित्रा का, और फिर बोला कि ये ज्यादा आवर करने लगा, क्योंकि सर स्पोर्ट्स में हमारे यहाँ है ना कि 3 मंथ्स करने पे फिर 30 आवर्स पे क्रेडिट कभी कभी मिलता है। हर फील्ड का अलग अलग टाइम है और ये है। So sister Rashmi is a very good friend of Taru Mitra. Okay. ओके सर। So don't worry about that. सिस्टर रश्मि से बहुत पहले से हम लोग कनेक्टेड हैं, और जब सिस्टर रश्मि नहीं थी उनसे पहले भी जो सिस्टर थे उनके साथ भी हम लोगों ने काम किया है।
ठीक है, we have a very good association with your college, so don't worry about that. और ये जो क्रेडिट वाली बात है अमरजीत, ये मेजरली अलग अलग कॉलेज का होता है कि सोशल वर्क पे आपको क्रेडिट्स देते हैं। सोशल वर्क का क्रेडिट होता है, स्पोर्ट्स का क्रेडिट होता है। तो सोशल वर्क के लिए आप उनको सर्टिफिकेट दिखाते हैं। आप कोई आपको सर्टिफिकेट ऐसे ही तो नहीं दे देगा, मैं आपको ऐसे ही सर्टिफिकेट तो नहीं दे दूंगा। आप आएंगे, कुछ काम करेंगे, उसका सर्टिफिकेट आपको मिलेगा तरुण मित्रा की तरफ से, राइट। फिर वो अपने कॉलेज में सबमिट करते हैं, तो वो आपको वहाँ पे आपका क्रेडिट मिल जाता है। वो वही मैं बोल रहा हूँ कि वो अलग अलग कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके कॉलेज में किस तरह का प्रोविजन है, कौन से यूनिवर्सिटी से हैं आप, और क्या क्या आपका प्रोविजन है। ओके। और Okay, आपका sir. जो IAS समर हॉलीडे में भी आना होगा। समर हॉलीडे में कहीं जाना है? सर जो हॉस्टल में रहता है वो घर जा रहा है। अरे हाँ, तो उसके लिए कुछ हम लोग देखेंगे क्या कर सकते हैं। हो सकता है कि आप अपने जो समर वेकेशन से पहले जो भी हम लोग कर रहे हैं, सीख रहे हैं, अगर वो आप अपने जहाँ भी आपका घर है, होम टाउन में अगर कुछ कर पाए हम लोग, उस तरीके से मोबिलाइज कर पाए कुछ, सो दैट विल पार्ट ऑफ इट। वी विल सी टू इट कि क्या करना है, कैसे करना है, वो हम लोग बात कर लेंगे आपस में उसके। और नहीं तो समर वेकेशन के बाद हम लोग वापस रीस्टार्ट कर सकते हैं, ब्रेक लेकर के। It's the better option, sir. You can make your own choices. Okay. Now, can we call it a night? Oh my God, it's getting so late. 9:30. नहीं, 1 घंटा हुआ है, ठीक है। We started also 10 minutes late. लेकिन Any बहुत more question? ज्वाइन नहीं किए मीटिंग, ये इसका क्या कारण हो सकता है? So ग्रुप पे जितने लोग हैं उतने लोग ही हैं, like that गूगल फॉर्म में we are having 21 people. नहीं, सर 21, माय हाँ, फ्रेंड 21 people. मेरी सर कॉलेज की 1-2 दोस्त है सर, वो लोग भी आजकल में कल परसों गूगल फॉर्म फिल की थी, तो सर क्या वो इस सर्वे में ऐड हो सकती है या हाँ, दूसरे सर्वे में ऐड होगी? नहीं वो उनको, उन सबको हम लोग 2 तारीख से उनको ज्वाइन कराएंगे। हाँ तो सर बहुत सारी फिल की थी, तो उन लोगों के पास आज गया नहीं सर, हम लोग होली के पहले ही किए थे फिल। हाँ, तो उनका अभी 1-2 दिन में उनको हम लोग कॉल करेंगे। ओके सर। ठीक है। आप लोग डिनर कर लिए? No, so सर जाओ यार, डिनर करो। sir. हाँ, yeah, go ओके ahead. सर, थैंक यू सर। Ritika, you were saying something? No, sir. Okay. okay guys, Let's call it a night, guys. Good night. good night. Enjoy. night, Good night, sir. Yeah.